اللہ کا فرمان بدلتا نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے حضرات۔ تو اولیاء کرام کو اللہ نے کیا کیا کمالات عطا فرمائے ہیں، اولیاء کرام کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں، اولیاء کرام کو کیا کیا مراتب عطا فرمائے ہیں، اولیاء کرام کو کیا کیا مرتبے عطا فرمائے ہیں پروردگار عالم نے۔ آؤ ذرا آپ دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک مادی طاقت ہوتی ہے اور ایک روحانی طاقت ہوتی ہے۔ مادی طاقت کی میں آپ کو ایک مثال دے کر کے آپ کے ذہن کو قریب کر دوں کہ مادی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ابھی روس کے اندر ایک جہاز کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، سمندر کے اندر جو جہاز چلتے ہیں وہ دو طرح کے جہاز ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو پانی کی سطح پہ چلتا ہے جس کو ہم بحری جہاز کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو پانی کے اندر چلتا ہے، اسے پنڈبی کہا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں بھی خبریں نکلی تھیں کہ ایک پنڈبی کے اندر لوگ بیٹھ کر کے سمندر کے نیچے کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے کہ دیکھیں سمندر میں کہاں کہاں پر ہیرے جواہرات ہیں، دیکھیں سمندر میں کیا کیا عجیب چیزیں ہیں۔ جب وہ پنڈبی کو لے کر کے جب سمندر کے اندر گئے تھے، اس کا پورا کام ریموٹ پہ ہو رہا تھا، باہر بڑے بڑے ویگیانک اندر جانے والے لوگوں کی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ جہاز ایک پہاڑ کی چٹان سے ٹکرا جاتا ہے جو چٹان سمندر کے اندر تھی، اس چٹان سے جا کر کے وہ جہاز ٹکرا گیا۔ ان لوگوں نے وہیں سے فریاد کی کہ ہماری جان خطرے میں ہے، اب ہم کو بچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب ان لوگوں کی فریاد ویگیانکوں تک پہنچی تو ان لوگوں نے بہت کوشش کی ان لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن کسی کی کوئی طاقت کام نہیں آئی، کسی کی مدد کام نہیں آئی۔ پھر انہوں نے دوسرے ملکوں سے مدد طلب کی، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اس جہاز کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ ایک جگہ کے لوگ کامیاب ہو سکے، جاپان کے، انہوں نے جہاز تو نکال لیا لیکن ان لوگوں کو نہیں بچا پائے جو جہاز کے اندر موجود تھے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے، یہ ایک مادی طاقت ہے، یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز تھی جو پہاڑ سے جا کر کے ٹکرا گئی، لوگوں کی جان نہ بچ سکی۔ لیکن آؤ میں آپ کو روحانی طاقت دکھاتا ہوں، آؤ میں آپ کو روحانیت کا مقام دکھانا چاہتا ہوں۔ وہی سمندر کا سفر ہے، کشتی پہ لوگ سوار ہیں اور لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کشتی کے اندر اچانک سے طوفان آتا ہے اور طوفان آنے کی وجہ سے کشتی موجوں میں پھنس جاتی ہے، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ کشتی چلانے والے ملاح نے کہہ دیا اب میں کسی کی جان کی گارنٹی نہیں لیتا ہوں، اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ لوگ پریشان ہیں، کوئی اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنے مال کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کو یاد کر رہا ہے۔ لوگ آہو بکا کر رہے ہیں، لوگ فریادیں کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے جو پانی کی سطح پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ ہم تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری حالت پہ ذرا غور کر، ہماری حالت پہ ذرا توجہ کر۔ اس اللہ کے ولی اپنی نماز کو مکمل فرماتے ہیں لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے رو کر کے کہا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری حالت پہ ذرا غور کیجئے۔ جب وہ نماز پڑھ کر کے سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کیا معاملہ ہے تمہارا؟ لوگوں نے کہا تم دیکھتے نہیں کشتی ڈوبنے والی ہے، ہمارا سارا مال ڈوبنے والا ہے، ہم اپنے سب کو یاد کر رہے ہیں، کوئی اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے، ایسے عالم میں ہم ڈوبنے والے ہیں، آپ ہی ہماری مدد کر دیجئے۔ کہا آپ اسے بے خوف و خطر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے۔ اس شخصیت نے کہا کہ میں نے اس رب کی بارگاہ کی طرف لو لگائی ہے کہ جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، جو روزی بھی دیتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ کہا کہ تم بھی اپنے فریاد اس رب کی بارگاہ تک پہنچاؤ، تم بھی اس رب کو یاد کرو، وہ رب تم کو اس بھور سے نکال دے گا۔ ان لوگوں نے رو کر کے آہو بکا کی، کہا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت اس شخصیت کا نام آپ سنو گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ شخصیت کون ہے جو پانی پہ نماز پڑھ رہی تھی؟ وہ شخصیت کون ہے جو سمندر میں جہاں لوگ اپنی جان کے خطرے کو محسوس کر رہے تھے اور وہ بے خوف و خطر
और अल्लाह की इबादत कर रही थी। वो शख्सियत कोई और नहीं थी, वो हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। कर्न की सरजमीन पे रहने वाले वो हजरत उवैस करनी, जब तक हयात रहे कोई उनके मर्तबे को नहीं समझ पाया। वो हजरत उवैस करनी, आज आप देखते हो एक मकाम पर मदीने वाले मुस्तफा ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानते हो, तुमने मुझको देखा है, मुझसे मोहब्बत की है। दुनिया में इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो कोई किसी का हुस्न देख करके मोहब्बत करता है, कोई किसी की दौलत देख करके मोहब्बत करता है, कोई किसी का खानदान देख करके मोहब्बत करता है। लेकिन कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, जिसने मुझको देखा नहीं है लेकिन मुझसे मोहब्बत करता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सलमान फारस से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, बिलाल हबशा से आ गए। या रसूल अल्लाह, मुल्क शाम तो कोई दूर नहीं है, वो चाहते तो आपकी बारगाह में आ जाते। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। दुनिया जिसे दीवाना समझ रही है, दुनिया जिसे पागल समझ रही है, उनकी अजमत और शान देखो, उनका जिक्र मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में हो रहा है, उनका चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। अल्लाह अकबर। ये हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। नबी इरशाद फरमाते हैं, उसकी बूढ़ी माँ है, वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत में लगा रहता है, इसलिए वो मेरा दीदार करने ना आ सका। जरा सोचो तो सही, नबी ने नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया। नबुव्वत के बाद में सबसे बड़ा मर्तबा सहाबियत का है, और सहाबियत के दर्जे से हजरत उवैस करनी महरूम रहे। सैयदुत ताबईन उनको कहा जाता है। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुत ताबईन है। आओ जरा देखो, यही हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, कुछ लोग हज करने के लिए आए हुए थे, उनसे सुना था कि कर्न के अंदर हजरत उवैस करनी रहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने हाजियों से कहा कि तुम में से मुल्क शाम से कौन कौन आया है। कई लोग खड़े हो गए, उनमें से पूछा कि ये बताओ तुम में मुल्क शाम में जो यमन है वहां से कौन कौन आया है। कुछ लोग बैठ गए, कुछ खड़े रहे। पूछा कि अब यमन में जो कर्न जगह है उस कर्न से कौन कौन आया है। सब बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा, और ये हजरत उवैस करनी का चचाजाद भाई था। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, क्या तुम उवैस बिन आमिर को जानते हो? कहा, हुजूर किस दीवाने की बात कर रहे हो, किस पागल की बात कर रहे हो? वो तो हमारे यहाँ पर तो लोग उसको दीवाना कहते हैं। उमर फारूक आजम ने फरमाया, तुम उसके मर्तबे को क्या जानो, तुम उसकी शान को क्या जानो, तुम उसके मकाम और मर्तबे को क्या जानो, तुम उसके मकाम सुरैया को क्या जानो। उवैस करनी का मकाम बहुत बुलंद है, उवैस करनी की शान बड़ी ही बुलंद वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, तुम उसके मर्तबे को नहीं जानते हो। अरे उसका जिक्र तो नबी की बारगाह में हुआ है। उस शख्स ने जब ये सुना, ये वही है उवैस करनी का चचाजाद भाई। जब उवैस करनी गलियों से गुजरा करते थे तो ये बच्चों को छोटे छोटे पत्थर दे करके कहता था कि इस दीवाने को पत्थर मारो। वो हजरत उवैस करनी है। जब गलियों से गुजरते तो लोग उन बच्चे उन पर पत्थर मारते थे, तो आप उन बच्चों से कहते थे, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से ना मारा करो, बल्कि मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो, क्योंकि मेरे जिस्म से जब खून निकलता है, मोटे पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरे कपड़ों पे लग जाता है, मेरा वुजू टूट जाता है। इसलिए मुझे छोटे छोटे कपड़ों से मारा करो कि मेरे जिस्म में तकलीफ तो हो लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले, मुझे नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। ये हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। जब तक माँ जिंदा थी तो कर्न में बस्ती में रहते थे, और जब माँ का इंतकाल हो गया तो बस्ती को छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि उमर और अली तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से होगी। जब मेरे उवैस के पास में तुम जाओ तो मेरा उनसे सलाम कहना, और मेरे उवैस को ये मेरा पैरहन शरीफ दे देना, और मेरे उवैस से कहना मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, मेरी गुनहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को तलाश करते हुए हजरत उमर फारूक आजम और हजरत मौला अली खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों आए, और आकर के जब कर्न में पूछने लगे तो लोगों ने कहा, बस्ती में तो उवैस नाम के कोई नहीं रहते हैं। एक ने कहा कि जंगल में एक दीवाना रहता है, उसको जाकर के आप देख लीजिए। हजरत उमर फारूक आजम और हजरत मौला अली शेर खुदा
दोनों सहाबी आए, आकर के देखा तो हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे थे। आकर के जब नमाज से फारिग हुए तो दोनों ने सलाम किया। हजरत उवैस करनी ने जवाब दिया और कहा, क्या आपका नाम उवैस बिन आमिर है? कहा, हाँ मेरा नाम उवैस है। कहा, क्या हम आपका दाहिना पहलू देख सकते हैं? नबी ने इरशाद फरमाया, उनको सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उस बीमारी को दूर फरमा दिया था। 1 दिरहम के बराबर उनके सफेद दाग की बीमारी यानी सफेद दाग का निशान उनके जिस्म पर मौजूद है। हजरत उमर फारूक आजम ने जब वो निशानी देखी तो पहचान लिया कि यही हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत उवैस करनी से उमर फारूक आजम ने कहा कि नबी ने आपको सलाम कहा है। इतना सुनना था कि उवैस करनी रोने लगे, नबी ने मुझे सलाम कहा है। मोहब्बत देखो, अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। ये मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत थी, ये मदीने वाले मुस्तफा का प्यार था, ये मदीने वाले मुस्तफा का इश्क था जिसने उवैस करनी को इस मकाम पे पहुंचा दिया था। मेरा इमाम पुकार के कहता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। ये है हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी से मोहब्बत सच्ची थी, नबी से इश्क सच्चा था, नबी से प्यार सच्चा था। नबी ने फरमाया, मेरे उवैस से जब मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहना। उवैस करनी से जब उमर फारूक आजम ने कहा कि नबी ने आपको सलाम कहा है, फर से मोहब्बत में झूम उठे, कहने लगे, एक बार और बताओ, जब नबी ने मुझे सलाम कहा था तो मेरे आका का चेहरा अनवर कैसा था? सहाबा ने फरमाया, मुस्कुरा करके कहा था, अल्लाह अकबर। ये देखे मोहब्बत, देखे वैसे करनी की हजरत उमर फारूक आजम ने या मौला अली शेर खुदा ने नबी का पैरहन शरीफ दिया और कहा कि नबी ने फरमाया कि मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, मेरी गुनहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करें। वैसे करनी ने वो पैरहन शरीफ लिया और तन्हाई में चले गए और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है, मौला तू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, मौला तू दिलों के राज जानता है, मौला तू दिलों के खतरात से वाकिफ है। मेरे परवरदिगार, ये तेरे प्यारे महबूब का पैरहन शरीफ है, इसे उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की गुनहगार उम्मत को नहीं बख्श देगा। इल्हाम होता है कि हमने तेरे कहने से इतनों को बख्श दिया है। अर्ज किया, मौला सबको बख्श दे। फिर इल्हाम होता है जब तेरे कहने से हमने इतनों को बख्श दिया है। ऐ कादरियो, अपनी किस्मत पे नाज करो, हमने गौसे आजम का दामन पकड़ा है, हमने गौसे आजम के दामन को थामा है। गौसे आजम का भी मकाम व मर्तबा यहाँ पहुंच करके सुन लो। तफरीहुल खातिर फी मनाकिब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी में लिखा है कि उवैस करनी ने अर्ज किया, परवरदिगार मेरे आका की कुल उम्मत को बख्श दे। तो इल्हाम के तौर पे आवाज आती है, ऐ उवैस करनी, हमने अपने महबूब की आधी उम्मत को तेरे कहने पर बख्श दिया है और आधी उम्मत को अपने महबूब बंदे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कहने पर बख्श देंगे। उवैस करनी कहते हैं, मौला ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? इल्हाम होता है, ये मेरा वो महबूब बंदा है जो बगदाद में पैदा होगा, जिसको मैंने तमाम वलियों का सरदार बना दिया है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।